ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਈਏ ਔਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਈ ਔਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਲਿਆ ਹੈ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਸदैव ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 31:6। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਡਰੋ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਅਸੀਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿਲਿਤ ਹੋਏ। ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, 360 BC ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੌਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਪੌਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਰਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਸ ਦੇ 10 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ
परमेश्वर पुत्र साफ रीति ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜੋ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 28 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। आत्मिक सुरक्षा उन्होंने को असीमित नहीं है। आत्मिक सुरक्षा परमेश्वर को है और परमेश्वर ही दे सकता है, और परमेश्वर दे कोल ही है। उसने क्या, सारी सृष्टि नूं मैं साजिया, मनुख नूं मैं बनाया। मनुख किसी दी संरचना नहीं, परमेश्वर की संरचना। ते की अज वो मनुख वायदा कर सकता है कि मैं तेरी रखिया करांगा? दूसरे शब्दों के विच परमेश्वर का वचन मैं विश्वासियों के लिए पढ़ रहा हाँ, यह भी मती रची सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 37 विच है, जो माता या पिता मैनू मेरे नालों ज़्यादा प्यार उसनू प्यारा जानता है, वो मेरे योग नहीं। जो अपने धी या पुत नू मेरे नालों ज़्यादा प्यारा जानता, वो मेरे योग नहीं। परमेश्वर साफ कहता है। इसका मतलब असी परमेश्वर विच आत्मिक हो के जदों असी नवा जन्म पाने हैं, जदों असी परमेश्वर नूं अपना मुक्तिदाता मानते। क्यों मानते हैं मुक्तिदाता? कारण, पहला कारण मैं आपनूं दस देवां, क्योंकि असी पापी हाँ। बाइबल ये दसदी है रोमिया 3:23 विच, सबना ने पाप किया अते परमेश्वर दे प्रताप तो रह गए। पहली गल है पाप, और जदों सानू पाप का बोध हो जाता है, क्योंकि पाप के कारण मौत मेरे उत्ते आएगी ही, क्योंकि परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर का न्याय रोमिया 6:23 दे विच साफ तौर पर लिखा है, पाप की मजदूरी मौत। ये मौत सबना ते होनी है। जे कोई कहे कि मैनू कोई मेरा अपना भरा या भाई या भैन मैनू बचा लेगा, वो धोखे विच है। या किसी संत या महंत ने गल कहती है कि मैं तुहानू बचा, वो धोखे विच है, क्योंकि मौत उन्हां ते भी आनी है, मौत मेरे ते भी आनी है। मैं किसी नूं आजीवन वायदा नहीं कर सकता, आजीवन सुरक्षा का वायदा किसी नाल नहीं कर सकता। सिर्फ परमेश्वर ही वो वायदा कर सकता है। जिस तरह परमेश्वर ने अपने चेलियां दे नाल मत्ती 28:20 दे विच वायदा किया कि वेखो युग दे अंत तिकर सदैव मैं तुहाडे नाल हां। व्यवस्था सार 31:6 दे विच उसने वायदा किया कि मैं युग दे अंत तक तुहाडे नाल, मैं तुहानू ना कदे छड्डांगा ना कदे त्यागांगा। साडे भाई भैन सानू छड्ड दिंदे आ किसी भी ओरी दे विच, किसी भी मुसीबत दे विच, किसी भी दुख दे विच, किसी भी संताप दे विच, पर परमेश्वर सानू नहीं छड्डदा है। उसका वायदा है। परमेश्वर यशाया 49 अध्याय उसकी 15 आयत दे विच साफ रीति नाल कहंदा है, एक दुध चुंगण वाली, जो दुध चुंगण वाले बच्चे की मां उसनू छड्ड सकती है, पर मैं तुहानू नहीं छड्डांगा। कितना स्ट्रोंग और कितना मजबूत वायदा परमेश्वर दिंदा है। परमेश्वर मेरी रक्षा करने वाला है, परमेश्वर मेरा रक्षक है। विश्वासी इस संसार के बंधना विच पै गए, विश्वासी इस संसार दीयां गल्लां विच चले गए। बाइबल दे विच जदों असी 26 अते 28 अध्याय व्यवस्था सार दे विच पढ़दे हां, उत्थे लिखिया है शराब अते आशीष इसराइलियां दे लई सी। लेकिन अज दे समय दे विच परमेश्वर विश्वासियां नूं की कह रहा है। मैं आप दे लई वचन पढ़ना चाहुंदा हां, रोमिया दी पुस्तक उस दा जदों असी 12 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ते हाँ, तो उस विच बाइबल दे विच परमेश्वर विश्वासियों नूं साफ रीति नाल वचन दे विच की कह रहा है। कहता है, मैं आप दे लई पढ़ रहा हाँ 12 अध्याय उस दी 2 आयत। इत्थे लिखिया है, इस संसार दे सदृश ना बनो, इस संसार दे सदृश ना बनो। टोटली परमेश्वर ने इस संसार दे हर एक पर्व, हर एक त्योहार, हर एक गल दे विच सानू वर्जित कर दिता है। संसार दे नाल मेल करन दे लई सानू रोक दिता है,
क्योंकि परमेश्वर ने मैनू अते आप नू जदों असी इस गल नू जान लैंदे मैं पापी हाँ और मैनू पाप तो बचाउण वाला मात्र इस दुनिया दे विच चुको है प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि रसूलों के किताब 4:12 दे विच लिखिया है, आकाश के हेठा मनुखा दे विचकार एक कोई नाम दिता गया है जिस तो तुसी बचाए जाना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उत्थे मेरा भरा या भैन या बच्चे या कोई भी सज्जन मित्र मैनू नहीं बचा सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह तो। मेरे जीवन की असीमित सुरक्षा दे सकता है मात्र परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह, और कोई नहीं दे सकता है। ओ परमेश्वर मेरी सुरक्षा दे सकता है जेड़ा युगान युग दा परमेश्वर है। क्योंकि की लिखा है, असी जदों परमेश्वर दे वचन दे विच पढ़दे हां, इब्रानियां दी पुस्तक उसका 13:8 दे विच कहंदा है परमेश्वर पुत्र दे बारे पौलुस रसूल दा वचन है। की कहंदा है, यीशु मसीह कल अज युगान युग इक्को जिहा है। वंडरस गॉड जिसने मेरे नाल वायदा किया है कि मैं युगान युग इक्को जिहा, ओ परमेश्वर मैनू असीमित सुरक्षा दे रहा है, उस तो इलावा कोई होर परमेश्वर सुरक्षा। जे कोई इस पर्व दे विच सम्मिलित हुंदा है तो इसका मतलब की है, वो ये ना सोचे कि मैं स्वर्ग दे विच चला जावांगा। नथिंग एल्स। बाइबल दे विच लिखिया है, जो एक बार तुसी थुक दिता उन्होंने तुसी चट नहीं सकते, क्योंकि तुसी संसार नूं अपने मुंह दे विचों कढ के थुक दिता है। जे तुसी फिर उस विच जांदे हो तां अपने आप उत्ते सजा दा हुक्म लैके आते हो। क्योंकि बाइबल दे विच की लिखिया है, मती दी अंजील 7 अध्याय उसकी 21 तो लैके 23 तक साफ रीति नाल पढ़ लो। हे प्रभु कहण वाले जड़े कहणगे प्रभु असी तेरे नाम दे विच इह काम कीते, पर उस कहंदे आ जाओ तुसी इह काम कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। वो सब बाइबल दे विच लिखिया है। मैं उन्हां नूं कह दवांगा मैं जानदा ही नहीं कौन है, वो सदा लई नरक दी अग दी पीड़ा दे विच चले जाण। ये परमेश्वर दा साफ अते सिद्धा उन्हां लोकां दे लई चिन्ह है जिन्हां ने परमेश्वर नूं जानदे होए भी संसार दे विच अपने आप नूं मिला लिया। पहली गल असीं देखदे हां, असी परमेश्वर का नवा जन्म पाया है, इसलिए पाया क्योंकि असी पापी सी। दूसरी गल, पाप तो छुड़ाने लई सिर्फ मात्र एको रास्ता है, वो यीशु मसीह। जदों यीशु मसीह नूं स्वीकार कर लिया तो मैं इस संसार तो वखरा हो गया। क्यों? क्योंकि इत्थे बाइबल दे विच की कह रहा है, जदों असी रोमिया 12:2 पढ़दे, इस संसार के सदृश ना बनो। क्यों? अगली गल नाल कहंदा है, पर तुहाडे मन दे नवे होण जाण करके तुहाडा चाल चलन बदलदा है। फिर भी असी हजे पुराने चाल चलन दे विच चल रहे हैं, फिर भी असी पुरानियां रीत रिवाजां दे विच चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हां तो छुड़ाउण दे लई, उन्हां मर्दावस्था तो सानू जीवत करन दे लई अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह दी जान कालवरी क्रूस ते उत्ते दित्ती है। जे मैं फिर वही काम करदा हां तां शरीरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह दे उस बलिदान दे कारण अपने आप को बेखुद करना। बाइबल दे विच की लिखिया है, इस लई मैं आप दे लई वचन पढ़ रहा, जेड़े विश्वासी इस तरह का काम करते हैं, विश्वास दे विच आके इब्रानियां दी पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 वचन मैं आप दे लई पढ़ रहा हाँ। इब्रानियां दी पुस्तक उसका 6 अध्याय का 6 वचन मेरे कोल है, मैं आप दे लई पढ़ रहा। इत्थे लिखिया है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया वन अनहोना है। जे वो भटक जान तो उन्हां दे लई नवा वन अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर दे पुत्र नूं अपने लई फिर क्रूस उत्ते चढ़ांदे, प्रगट विच उस उत्ते कलंक लाउंदे आ। मैं तो नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल इब्रानियां का लेखक कह रहा है। मेरे प्यारे अजीज, तुसी
परमेश्वर पुत्र विच आके अगर फिर मुड़ उही काम कर रहे हो, फिर तुसी उन्हां पुराने रीति रिवाजां विच जा रहे हो, तां शरीरन तुसी अपने परमेश्वर दे उत्ते कलंक ला रहे हो। और जिहड़े कलंक ला रहे हैं, बाइबल दसदी है वो मेरे राज विच ना बढ़न। दैट इज क्लीयर। इसलिए बाइबल दे विच साफ तौर ते लिखिया है, जिहड़े परमेश्वर दे वचन दा अनुसरण करदे है वो परमेश्वर दे सत्य दे पथ दे उत्ते चलन, भाव सत्य दे मार्ग उत्ते चलन। प्रभु यीशु मसीह ने मती नूं कहा सी, फॉलो मी। ਇਹਦਾ मतलब फॉलो मी ਦਾ मतलब स्वर्ग दे उस मार्ग दे पिछे चलना जिससे प्रति प्रभु यीशु मसीह ने मैनू अते आप नूं कहा, सत्य मार्ग अते जीवन मैं हाँ, बिना मेरे द्वारा तू पिता नूं नहीं मिल सकता। जिन्हें मैनू वेख्या उन्हें पिता नूं वेख्या, जिन्हें पिता नूं वेख्या उन्हें मैनू वेख्या। असी पिता दे नाल मिलदे हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता पवित्र है। उसने पतरस की पुस्तक दे विच साफ रीति नाल कहा, पहला पतरस 1:16 दे विच, मैं पवित्र हाँ तुसी भी पवित्र बनो। असी अज पवित्र होए हाँ प्रभु यीशु मसीह दे वसीले। जे असी प्रभु यीशु मसीह दे वसीले पवित्र होए हाँ तो संसार दे नाल मेरा कोई नाता नहीं, संसार दे रीति रिवाजां दे नाल कोई मेरा नाता नहीं, संसार दियां भावनात्मक गल्लां दे नाल मेरा कोई नाता नहीं। मेरा नाता है परमेश्वर दे आत्मिक वचन दियां आत्मिक गल्लां दे नाल, जड़ियां दिन प्रति दिन मैनू जीवंत करदियां ਅਤੇ ਜੈਵੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੈਵੰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸदैव ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। मैं तुहानू ना कदे छड्डांगा ना कदे त्यागांगा। मेरे पिता दे घर दे विच बहुत सारे निवास है, जे नहीं हुंदे तां मैं तुहानू कह दिंदा जिथे मैं हाँ उत्थे तुसी भी होवोगे। इहदा मतलब जे असी प्रभु यीशु मसीह दे कोल जाना है तां संसार दे सारे इन्हां गतिविधियां नूं, सारियां रीत रिवाजां नूं छड्ड के परमेश्वर की आत्मिकता जो पवित्र वचन है उस दे उत्ते ध्यान केंद्रित करते हुए उस विच वधना। तद तुसी परमेश्वर की आत्मिकता का स्वाद अपने विच चखदे हुए स्वर्ग की जिउंदी आस विच वधदे जाओगे। कुछ वचन मैं आप दे लई पढ़ दिंदा जो अधर्म दे नाल इस संसार दे विच चल रहे, उन्हां दे लई प्रभु का वचन दूसरा थिस्सलुनीक 2 अध्याय उस दे विच मैं आप दे लई 8 तो पढ़ रहा। तद ओ अधर्मी प्रगट हो जिस नूं प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूक नाल मार सुटेगा अते अपने आगमन दे तेज नाल भस्म करेगा। उस धर्मी दा आउणा शैतान दे कम्मां दे अनुसार सब प्रकार की झूठी समर्थ चिन्ह अते अद्भुत कम्मां दे नाल होवेगा। इहदा मतलब अज संसार दे विच एक काम हो रहा, की हो रहा? शैतान दे कम, झूठी समर्थ। झूठी समर्थ कई लोग कह के कर रहे हैं, उदा ही अपना थले सुट रहे हैं, बंदियां नूं कह कह के थले डिग रहे। झूठी समर्थ। रियल समर्थ अगर थोड़े जीवन विच है तो तुसी पाप नूं मन के उस पिता दे अगे प्रभु यीशु मसीह दे विच जीवंत हुंदे हो। तुसी डिगदे नहीं हो, डिग के उठ खड़े हुंदे हो, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए दफन हो गया मैनू जीवंत करन दे लई। ते हजे भी असी डिग रहे हैं। बड़ी गलत सिक्ख्या आ चुकी है। और दूसरी गल उस दे विच की कह रहा है 9 दे विच, दूसरा थिस्सलुनीक 2:9 दे विच चिन्ह, वो चिन्ह विखालणगे। तीसरी गल की है अद्भुत काम, वंडरस काम तुहाडे विच प्रगट करनगे। इस संसार दे विच होगे, क्योंकि संसार दे लोग भी करते हैं, पर संसार दे लोकां दे कोल आत्मिक जीवन की सदा की गारंटी नहीं है जो मेरे प्रभु ने मैनू अते आप नूं दित्ती है। समझते हो मेरी गल? कितनी अद्भुत गल है। असी उस जिउंदे परमेश्वर नूं छड्ड के फिर संसार दे अते संसार दीयां गल्लां दे विच मिल के उस असीमित सुरक्षा नूं अपने विच कलंकित कर रहे हैं। उन्हें तो मेरे लिए दे दिता है, पर जावेगा वही जिहड़ा अंत तक विश्वास योग रहेगा। प्रकाशित वाक्य 2:10 दे विच जो लिखा है उस गल नूं याद रखना, भुलना नहीं। परमेश्वर
मैनू विश्वासयोग विश्वासी दे रूप दे विच अपने नाल स्वर्ग दे विच देखना चाहता है। इस संसार दे नाल मिलिया होया विश्वासी दे रूप दे विच नहीं। इस करके बाणी दे विच लिखिया है, सदे होए तां बहुता पर चुने होए बहुत थोड़े। हुण गिणती कर लो असीं किहनां विच आ। हुण अपने आप दे विच ध्यान करके देख लो असीं किहनां दे विच आ। अपने आप दे विच जज करके देखो कि मैं उस विच हां या नहीं। मौका है हुण परमेश्वर दे नाल पूरी तरह वफादारी नाल चलण दा। जे वफादारी नाल नहीं चले प्रियो तां जिस तरह इत्थे धनी ते लाजर ने जीवन बतीत किया, जदों अंत दा समा आया लाजर परमेश्वर दी गोद विच अब्राहम दी गोद विच पाया गया अते धनी उस नरक दी अग दे। फैसला तुहाडे हथ विच है कि तुसी संसार दे रीति रिवाजां नाल चलना चाहते हो जां परमेश्वर दी उस समर्थ दे अनुसार जो मसीह यस्सु दे विच मेरे जीवन विच प्रगट कर दी है, जिहड़ी मैनूं जिउंदी आस दे नाल इस धरती दे विच रहिंदे होया स्वर्ग वाल लैके जाए। फैसला तुसी करना। अंतिम गल पढ़ के मैं आप नूं लैके अते नाश होण वालियां दे लई अधर्म दे सब काम धोखे दे नाल होणगे, क्योंकि उन्हां ने सत अते प्रेम नहीं कीता, जिस तो उन्हां दी मुक्ति हुंदी नहीं। इस कारण परमेश्वर उन्हां विच एक भटका देण वाली समर्थ नूं भेजेगा। वो झूठ नाल प्रीत करनगे ताकि जिन्ने सत दी प्रीत नहीं करदे वो अधर्म नाल प्रसन्न होणगे अते सब दंडित पाउणगे। कई पासवां ने देखते हैं जे इन्हों असी रोक दिता किते साडे चर्च दे विचों ना चले जाए। बड़ी गलत सोच है। जो परमेश्वर ने तुहानूं दिता उसनूं कोई खो नहीं सकता, तुहाडे कोल कोई ले जा नहीं सकता। मेरे विच ये बिरती नहीं है कि मैं तुहाडीआं भेडां नूं खिच के अपने कोल ले जाऊं। पौलुस यही तो कहता है जदों असी रोमिया की पुस्तक 15 अध्याय की 20 आयत पढ़ते हैं, उहदे विच लिखिया है मैं किसी दूसरे की नींह के उत्ते अपना घर नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि वो रिवार्ड मैं नहीं हासिल कर। वो जिन्हें वो भेड़ नूं अपना खुशखबरी सुनाई है, जिन्हें उस भेड़ के लिए परिश्रम किया वो उहदा हकदार है। मैनू नहीं इस चीज़ का मलाल है, मैं इस चीज़ के विच फेथ नहीं करता। बहुते लोग अज इस दुनिया के विच इस तरह की अपना गल कर रहे, तुसी साडे कोल आओ आ देखो। गलत गल, गलत गल। सच का प्रचार करो, सच दे नाल तुहाडे कोल अपने आप लोग खिच्चे चले आउणगे। सच का प्रचार करदे हो तां तुहाडे विच खड़े रहणगे, भावें तुसी थोड़े ही हो, पर परमेश्वर उत्थे तुहानूं शाबाशी देगा। ऐ विश्वासयोग विश्वासी शाबाश, तू इस धरती दे अंत तक मेरे वचन दे नाल वफादार रहा। शाबाश। वो असीमत सुरक्षा दे नाल असीमत स्वर्ग राज दे विच प्रवेश कर। ये फैसला तुसी करना है कि तुसी सत दे विच रह के अधर्म दे नाल हथ मिला के अपने जीवन नूं नाश करना है, या अधर्म नूं छड्ड के सत दे नाल हथ मिलांदिया होया स्वर्ग राज दे विच प्रभु यस्सु मसीह दे नाल प्रवेश करना। फैसला आपदा है। प्रभु सानू असीमत सुरक्षा का वायदा दे रहा है। मती 28:20 दे विच की कह रहा है? युग दे अंत तिकर सदैव मैं तुहाडे नाल हां। भाई भैन मैनू सुरक्षा नहीं दे सकते, मेरे रिश्तेदार मैनू सुरक्षा नहीं दे सकते, मेरे सके संबंधी मैनू सुरक्षा नहीं दे सकते, पार्लीमेंट के जिन्ने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो मैनू सुरक्षा नहीं दे सकते। मैनू सुरक्षा सिर्फ प्रभु यस्सु मसीह दे सकता है, जिसने कहा युग के अंत तक मैं तुहाडे नाल हां। बहुते लोग मिनिस्टरां दे पिछे भजदे हैं, मिनिस्टरां दे नाल यारियां लांदे हैं, पर मेरी यारी तां उहदे नाल है जिहड़ा सब दे उत्ते अपनी सुरक्षा दिंदा ते मैनू कहंदा मैं तैनू सुरक्षा ना, मैं तैनू कदे नाश नहीं हो। इसलिए वो कहता मैनू पुकार ते मैं तैनू जीवन दूँ। उस परमेश्वर दे कोल जाके अपने जीवन की सुरक्षा मंगो, अपने जीवन दे लिए सुरक्षा अपने जीवन दे विच रखो। एक आखिरी गल कह के मैं समाप्त करांगा। मैं समझदा हाँ जदों यरीहो दे विच जंग लड़ रही सी, उस जंग दे विच बहुत सारा कम होया। यहोशू दे कोल कमांड सी और यहोशू जदों उस जगह दे उत्ते जाण वाला सी
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਰਹਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਡੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਲਾਲ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਡੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਲਹੂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏਗਾ ਅਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 2 ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ स्वर्ग दे परमेश्वर यीशु मसीह दा लहू जिसने मैनू जीवन दिता है, यीशु मसीह जिसने मैनू कहा है कि तू जे मेरे उत्ते नीचा करदा है तू यकीनन ना मरेगा। जे थोड़े विचों है तो परमेश्वर की सुरक्षा थोड़े नाल, जे थोड़े विचों नहीं संसार दीयां गल्लां ते संसार दीयां रीति रिवाजां है तो तुसी यकीनन नाश हो जाओगे। क्योंकि बाइबल दे विच साफ तौर ते लिखा है ये सारे प्रभु प्रभु कहण वाले, ये सारे संसार दे मिलन वाले, संसार दे चमत्कार करन वाले, चमत्कारां दे नाल भटकाउण वाले सब नूं मैं कह दवां मैं तुहानूं नहीं जानदा। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਉਂਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।